Today's topic is Lagrange's method of undetermined multipliers to find the stationary points of any function. So in the previous lecture, what we studied about how to find maximum or minimum value of any function. So what was the procedure? Procedure was to find out the first order derivatives and the second order derivatives. The first order derivatives will give you the stationary points, means where the function may have maximum or minimum, and the second order derivatives, they will tell you, they will means verify that whether the function has maximum value or minimum value at the stationary point. So this was the previous method. This was the procedure. First find out the critical points of any function. So, and how to find out critical points? The first order derivatives are equal to 0. So after solving these two equations, we will get the values of x and y. These points are critical points. So next point, find out the second order derivatives r, s and t. So at the critical points, so suppose the critical point is AB, so at this point we have to calculate all the second order derivatives. Then we have to find out this at rt minus s square. If this is greater than 0, r is greater than 0, then function has minimum value at AB. Similarly the other conditions, and similarly the other conditions for the other points, means we may have more critical points. So at one point we have find out this procedure. Similarly, if we find other points also, then or at those point also we find out this procedure. So now the next method, which is Lagrange's method. So the Lagrange's method of undetermined multipliers. So suppose this is what is the means, what is the condition? Sometimes what happens that one function is given whose maximum or minimum value we have to identify, and plus one relation is given between the variables. So in this function we have three variables x, y, z, and we have given one function. So this has been given to us. So this is a relation between independent variable x, y, z. So we have to find out the maximum or minimum value of this function such that the x, y, z value satisfies this relation. So one way means, if we don't want to use Lagrange's method, suppose this is your question and you have to solve this using the previous method. So one way maybe that using this relation, what we can do, we can find out, suppose because we have studied the procedure for a function of two variables. So when we have two variables, then we can apply the last procedure. मीन्स हमें क्या करना होता है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं, देन इक्वल टू जीरो, फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर एस टी कैलकुलेट करते हैं. बट सपोज अगर फंक्शन में तीन वेरिएबल हैं या तीन से ज्यादा वेरिएबल हैं, तो एक्स वाई जेड, जैसे इस फंक्शन में एक्स वाई जेड, तो तीन वेरिएबल के लिए तो हमने वो प्रोसीजर नहीं पढ़ा है. दैट प्रोसीजर इज फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. लेकिन अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं. लेकिन एक और कंडीशन है कि एक्स वाई जेड में हमें एक रिलेशन भी गिवन है. तो हम क्या कर सकते हैं, वन वे इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द फंक्शन, बिकॉज दिस रिलेशन इज गिवन इन एक्स वाई जेड. So using this relation, we can find out the value of x in terms of yz, or the value of y in terms of xz, or the value of z in terms of xy. So using this relation, we can reduce one variable from the function. Clear? क्योंकि ये एक रिलेशन है एक्स वाई जेड में, तो इससे हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स. सपोज मैंने एक्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई जेड मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी इस फंक्शन में. तो एक्स की जगह क्या आ गया, वाई जेड. तो यानी अब ये फंक्शन किसका हो गया, केवल है वाई एंड जेड का, यानी दो वेरिएबल का. तो जब जैसे ही दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, हम क्या करते हैं, प्रीवियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं. बट सपोज ये पॉसिबल नहीं है, सपोज ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, Lagrange's मेथड यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज द सेम थिंग रिटन इन दिस टेक्स्ट. So what is written here? Sometime it is required to find the stationary values of a function of several variables which are not all independent but are connected by some given relation. Means this is your relation.
This is your function whose maximum or minimum, whose stationary point we have to find out, and the one relation is given between the independent variable. This is phi of x, y, z. So ordinarily what we try to convert the given function to one having least number of independent variables. तो वही मैंने आपको बोला कि इस रिलेशन से हम क्या करें, क्योंकि हमने जो प्रोसीजर पढ़ा है वो 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ा है, तो इस रिलेशन से हम किसी एक वेरिएबल को बाकी वेरिएबल्स के वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वेरिएबल, ये फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम वो प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, लेग्रांजिस मेथड पर स्विच करेंगे। नाउ व्हाट इज लेग्रांजिस मेथड? तो लेग्रांजिस मेथड क्या कहता है कि हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर यू टू हैव स्टेशनरी वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट से स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उन सबको हम जीरो रखते हैं। सो डेल यू ओवर डेल एक्स इज जीरो, डेल यू ओवर डेल वाई इज जीरो, डेल यू ओवर डेल जेड इज जीरो। तीनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, क्योंकि तीन बनेंगे, क्योंकि तीन वेरिएबल हैं तो तीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स बनेंगे, तीनों के इक्वल जीरो रखा। नेक्स्ट अगर हम टोटल डेरिवेटिव की बात करें वो क्या होता है, सॉरी डी यू। सो डी यू की वैल्यू क्या होगी टोटल डिफरेंशिएशन से, बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल्स। सो डी यू की वैल्यू क्या होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई, एंड डेल यू ओवर डेल जेड डी जेड। सो दिस इज डी यू। बट क्योंकि डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड जीरो है, टू हैव स्टेशनरी पॉइंट्स, सो ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो, दैट मीन्स डी यू जीरो हो गया। अगेन अगर जो सेकंड रिलेशन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका भी टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, फाई का, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई, डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड, दैट इज डी फाई। दिस इज ऑल्सो जीरो। वाई ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन ऐसा दिया है ना, फंक्शन फाई, द वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस फंक्शन फाई इज जीरो। तो जो भी डी फाई होगा यानी उस डी जीरो के इक्वल होगा, और डी जीरो मीन्स जीरो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो दिस इज आल्सो जीरो। तो अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में प्लस मीन्स इस इक्वेशन में हमने लैम्डा का मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन के साथ ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई लैम्डा डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई, ऐसे ही डेल यू ओवर डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब ये इक्वेशन कब जीरो होगी, जब तीनों की तीनों टर्म जीरो होंगी, यानी ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए। तो अगर ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो वही हमें करना है, दीज थ्री इक्वेशन टुगेदर विथ टू means one this equation and another this relation. Using these relations means first relation and this relation, so we can determine the value of x y z and lambda for which u is stationary. So in short what is the working procedure, आपको करना क्या है कि आपका एक तो गिवन फंक्शन हो गया फाई एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जिसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम, जिसके हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलाने, प्लस एक दूसरा रिलेशन दे दिया फाई एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू जीरो, तो हमने उसमें लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो एक फर्स्ट स्टेप होगी कि जिस फंक्शन की मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट निकालना है वो फंक्शन, प्लस जो रिलेशन दिया है लेमडा टाइम्स दैट फंक्शन लेमडा फाई। हमें एक नया फंक्शन बनाना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, मींस कैपिटल एफ एक नया फंक्शन बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एफ, जिसकी स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, प्लस लेमडा टाइम्स एक रिलेशन जो एक्स वाई जेड में गिवन होगा, मींस लेमडा फाई। फिर ऑब्टेन द इक्वेशन, हमें क्या करना है, इस कैपिटल एफ को जो नया फंक्शन बना है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व द अबव इक्वेशन टुगेदर विथ फाई इज इक्वल टू जीरो, मींस एक ये रिलेशन और एक जो रिलेशन गिवन था फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों को सॉल्व करके जो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेंगी, these are called stationary values of x y function of x y z। यानी इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन वो एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एफ। तो स्टेशनरी पॉइंट कहाँ होते हैं, जहां पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये अब नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस मेथड, दिस विल गिव यू ओनली स्टेशनरी पॉइंट्स, मींस
ये मेथड क्या करेगा, केवल आपको स्टेशनरी पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा, मींस दिस विल नॉट टेल यू दैट whether the function has a maximum or minimum value at the stationary value. So this is the limitation. So although the Lagrange's method is often very useful in application, yet the drawback is that we cannot determine the nature of stationary points. मतलब आपको स्टेशनरी पॉइंट तो मिल गए, लेकिन उन स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू है कि नहीं या नहीं है, ये हम आंसर नहीं कर सकते. सो दिस तो अगर हमें Lagrange's मेथड यूज करना है, सो वी कैन गेट ओनली स्टेशनरी वैल्यूज, नॉट द नेचर ऑफ स्टेशनरी वैल्यू कि उस पर मैक्सिमम है या मिनिमम है. तो जनरली इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपको स्टेशनरी पॉइंट्स ही पूछते हैं, या फिर वो आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर वो पूछ रहा है तो इस पर मैक्सिमम ही होगी, या मिनिमम बोलता है तो मिनिमम ही होगी. तो अदरवाइज हमें क्या है, और एनालिसिस करना पड़ेगा, फिजिकल कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मींस उस प्रॉब्लम को हमें और ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दैट कि उस स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमम है या मिनिमम है. इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं, कोई स्टेप बाय स्टेप कोई एल्गोरिथम नहीं है हमारे पास, कोई मेथड नहीं है कि जिससे स्टेशनरी पॉइंट पर बता दे कि मैक्सिमम हो गया या मिनिमम. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ Lagrange's मेथड. सो पहला क्वेश्चन देखिए ऐसा ही, जिसमें हमने दोनों मेथड से ट्राई किया है. एक तो फर्स्ट अप्रोच थी, क्योंकि हमने बताया था कि अगर 3 वेरिएबल्स में है और एक रिलेशन दिया है बिटवीन 3 वेरिएबल्स, तो हम इस रिलेशन को यूज करके हम इस फंक्शन में एक वेरिएबल को कम कर देंगे, तो हमारे ये 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लास्ट वाला प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द सेम क्वेश्चन. A rectangular box open at the top is to have volume of 32 cubic. तो rectangular box दिया है, उसकी डायमेंशन क्या है, सपोज x y z उसकी डायमेंशंस हैं, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, दिस इज गिवन, दिस इज 32 क्यूबिक, सो दिस इज 32. So this relation is given that the volume of the rectangular box, which is x y z, is equal to 32. Now find the dimensions of the box, means find out the values of x y z requiring least material for its construction. लीस्ट मीन्स मिनिमम मटेरियल फॉर इस कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है कि हमें एक्स वाई, इस बॉक्स की एक्स वाई जेड डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, सच दैट कि वो डायमेंशन इस तरह से होना चाहिए कि इसका जो, जब ये बॉक्स बनेगा तो उसमें जो मटेरियल यूज होगा वो मिनिमम होना चाहिए. तो मटेरियल मतलब कोई बॉक्स आपके पास ये है, तो इसमें इसके कंस्ट्रक्शन में मिनिमम मटेरियल लगे, दैट मीन्स इसका जो सरफेस एरिया है, हम क्या बना रहे हैं बॉक्स में, सरफेस एरिया ही तो है, बाकी वॉल्यूम तो जो उसमें अंदर फिट होगा वो है. तो सरफेस एरिया जो इसका है वो मिनिमम होना चाहिए. तो हमने अज्यूम किया दैट एक्स वाई जेड आर द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स एंड एस बी इट्स सरफेस. तो अब अगर हम सरफेस की बात करें, हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा उसका, देखिए x इंटू, देखिए क्योंकि दिस बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, तो इसके कितने सरफेसेस बनेंगे टोटल, 5. चारों तो साइड्स के, मींस चारों आपके नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, और एक बॉटम एक टॉप. तो बॉटम बनेगा क्योंकि बॉक्स बंद होगा, लेकिन ओपन एट टॉप मींस इसका ऊपर वाला सरफेस नहीं है, तो यानी टोटल 5. जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर टोटल देखे जाए तो टोटल 6 फेसेस होंगे, लेकिन उस 6 फेसेस में से हमें क्या करना है, मींस अगर आप बॉक्स देखें, सपोज ये आपका बॉक्स है, तो इसमें टोटल कितने बॉक्स सरफेसेस बनेंगे, देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे ही बना है, ये स्क्वायर आपको लग रहा होगा, बट दिस इज सपोज रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो इसके फेसेस क्या होंगे, एक ये वाला साइड, एक इसी के सामने वाला साइड, एक हमारे से सामने ये वाला साइड, और इसी के पीछे वाला साइड, मींस ये वाला. तो 4 हो गए, और एक बॉटम, और एक हो गया टॉप. इसके टोटल 6 फेसेस होंगे, बट दिस इज ओपन एट टॉप. तो यानी ये वाला फेस, जो ये वाला सरफेस है वो ओपन है, इसमें कोई मटेरियल नहीं लगेगा, क्योंकि ओपन है, यानी वो वाला एरिया हमें नहीं बनाना है. बाकी 5 एरिया बनेंगे इस बॉक्स में, तो टोटल 5 एरियाज होंगे. तो इसकी डायमेंशन देखिए 2yz, मतलब
एक सपोज ये वाला है तो इसके साइड वाला दोनों एक्सिस होंगे, इसलिए 2 टाइम्स वाई जेड। सिमिलरली एक ये वाला सामने वाला है और इसी के जस्ट पीछे वाला है, तो वो दोनों भी एक से होंगे, सपोज 2zx। और बॉटम जो है वो बॉटम का क्या है, xy। तो अगर ये अप साइड से भी बंद होता तो इसके सरफेस में यहाँ पर भी 2 टाइम्स हो जाता, तो दिस इज ओनली xy, क्योंकि ये केवल बॉटम है, अपर वाला नहीं है, ओपन एट टॉप। सो दिस इज the surface area of the rectangular box which is open at the top, xy 2yz 2zx। और हमें वॉल्यूम दिया है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम 32 क्यूबिक होना चाहिए। तो हमें क्या कंडीशन है कि हमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स डिजाइन करना है जिसका वॉल्यूम 32 हो और प्लस उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो। क्लियर? सो दिस फंक्शन हैज टू बी मिनिमम एट एक्स वाई जेड। तो उसकी डायमेंशंस हमें क्या रखनी है कि इस एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होंगी, सच दैट दिस सरफेस एरिया इज मिनिमम एंड द वॉल्यूम इज 32। सो दिस इज कंडीशन। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। तो आपको इस फंक्शन की मिनिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली देखेंगे सो दिस इज मींस इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, बट एक्स वाई जेड के लिए अगर हमें, तो हमें पता है कि हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है 32, तो इससे हम क्या करेंगे, हमने सपोज z की वैल्यू निकाली, तो z की वैल्यू क्या है 32 बाय एक्स वाई। सो हमने यहाँ रख दी z की जगह 32 एक्स वाई एंड इधर भी रख दिया 32 बाय एक्स वाई। तो ये वो इक्वेशन बना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये इक्वेशन जो है, ये फंक्शन जो है, दिस कंटेन्स 2 वेरिएबल्स ओनली। सो दिस s इज नाउ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के लिए आपको पता है कि कैसे करना है। आप क्या करोगे, इस फंक्शन को कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालोगे, उसको इक्वल टू 0 आप सेट करोगे और इससे आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। आप जैसे ही इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिल गई डायमेंशन एक्स वाई इज इक्वल टू 4। एक्स एंड वाई बोथ आर 4। और इसको आप यहाँ रख दो क्योंकि 3 डायमेंशन है, तो आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो z की वैल्यू मिल जाएगी 32 बाय एक्स इंटू वाई, यानी 32 बाय 4 इंटू 4। सो कितना आ जाएगा वो 32 बाय 16। सो मीन्स वो क्या आ जाएगा 2। सो z इज 2। तो एक्स वाई जब 4 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हम क्या करते हैं, यानी ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट हो गए हमारे प्रोसेस से कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां 0 होंगे वो क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट। तो हमें डायमेंशन मिल गई। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं इस फंक्शन के, क्योंकि हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो ये क्या है, एस फंक्शन। तो आर क्या है, डेल टू एस ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गया। एस क्या है, डेल टू एस ओवर डेल एक्स डेल वाई, वो ये आ गया। टी क्या है, डेल टू एस ओवर डेल वाई स्क्वायर, वो ये आ गया। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। आर टू माइनस एस स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव आ गया, और आर भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फंक्शन की क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। यानी हमारे डायमेंशन मिल गई कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 2। इस पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, यानी इस सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो ये तो हो गया लास्ट वाले मेथड। नेक्स्ट अगर हम लेग्रांजेस अप्लाई करेंगे तो लेग्रांजेस में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें एक फंक्शन बनाना है कैपिटल एफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी स्मॉल एफ प्लस लेमडा टाइम्स फाई रिलेशन। तो स्मॉल एफ तो ये हो गया जिसका हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, तो एक्स वाई 2yz 2zx, ये हमारा एस मतलब एफ फंक्शन हो गया स्मॉल एफ प्लस लैम्डा इंटू फाइव। फाइव क्या होता है, फाइव फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो वो रिलेशन क्या है, एक्स वाई जेड माइनस 32 इज इक्वल टू 0। हमें इज इक्वल टू 0 यानी या तो आप 32 माइनस एक्स वाई जेड रखिए या एक्स वाई जेड माइनस 32 रखिए। तो ये हमारा नया रिलेशन हो गया। तो दिस इज फाइव फंक्शन। सो एफ प्लस लैम्डा टाइम्स फाइव, ये हमारा कैपिटल एफ फंक्शन बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है, इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही इसको सॉल्व किया मींस ये आपको इक्वेशंस मिली। नेक्स्ट अब आप क्या किया, देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, इन इक्वेशन से प्लस गिवन रिलेशन से, यानी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 32 की यूज से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो हमने वही ट्राई करें कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें। सो मल्टीप्लाई 3 बाय एक्स, इस इक्वेशन में हमने x का मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन में हमने y का मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए इन दोनों, ये देखिए हमने इसमें x का मल्टीप्लाई किया था तो एक्स वाई माइन, और इसमें y का, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2zx माइनस 2zy, तो ये आ गया 2zx माइनस 2zy। ऐसे ही लेमडा एक्स वाई जेड और ये हो गया लेमडा एक्स वाई जेड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल क्या बचा ये, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 कैंसिल हो गया, z इंटू एक्स माइनस वाई, ये इक्वेशन बनेगी z इंटू एक्स माइनस वाई। तो z इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो या तो z 0 होगा या x माइनस वाई 0 होगा, लेकिन z 0 हो नहीं सकता, वाई
बिकॉज दिस इज वन डायमेंशन, तो डायमेंशन तो जीरो नहीं हो सकती ना, लेंथ है या हाइट है या विड्थ है, तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप z को जीरो तो नहीं रख सकते हो, तो जीरो रख देंगे तो फिर लेंथ जीरो होगी या हाइट जीरो होगी। बाकी फिर तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, x माइनस वाई जीरो होगा, तो x माइनस वाई जीरो कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू y। क्लियर? सो x इज इक्वल, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू y। अब इस रिलेशन को यानी इन इक्वेशन से आपने सॉल्व किया। सिमिलरली अब हमें क्या करना है कि अब हमने फोर्थ में y का मल्टीप्लाई किया, फिफ्थ में z का मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें एक और रिलेशन मिल गया, y इज इक्वल टू 2z। क्लियर? तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2z। अब इस रिलेशन को, अब ये 4 कैसे मिला बताते हैं। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2z, इस रिलेशन को हम यूज करके क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x y z इज इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू क्या है, सपोज x की वैल्यू y है तो x की जगह y रख दिया, y की जगह y रखा, और z की वैल्यू क्या है इस रिलेशन से, z की वैल्यू है y बाय 2, तो इसको y बाय 2z की जगह रखा, तो पूरी इक्वेशन किस में बन गई, y में। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू मिल गई, तो उसको यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां से x इज इक्वल टू y मिला, y की वैल्यू 2z मिली, तो किसी भी एक वेरिएबल में ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक वेरिएबल में तो तो इन दोनों इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2z, जब ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सपोज जैसे आपने y की जगह x रख दिया और z की जगह क्योंकि x तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 2z भी हो जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी x बाई 2, तो x इंटू एक्स बाई 2, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 64, तो एक्स क्यूब 64 कब होगा, व्हेन x इज प्लस माइनस 4। सो प्लस माइनस 4, सॉरी प्लस 4 की डायमेंशन है, तो x इज इक्वल टू 4, और x 4 है तो y भी 4 होगा, और इस रिलेशन से अगर y 4 है तो z की वैल्यू 4 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, तो यानी वो क्या हो गया, हमें सॉल्व होके 4 मिल गया है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस मेथड से तो हमें स्टेशनरी पॉइंट के साथ साथ ये भी नेचर भी मिल गया कि नेचर क्या है, तो हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का डिसीजन ले लिया। बट लैग्रांजियन मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि वो हमें केवल स्टेशनरी पॉइंट देगा। अब इस पॉइंट पर वो कौन सी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम मिनिमम, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस मेथड के थ्रू, तो उसमें हमें कुछ फिजिकल नेचर ट्राई करना पड़ेगा, कुछ और एनालिसिस करना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो जनरली हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम वो अज्यूम करते हैं कि उन पॉइंट्स पर वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। जैसे इसमें इसमें हमें लीस्ट मटेरियल यानी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो हम बोलेंगे कि हाँ इन पॉइंट्स पर मिनिमम फंक्शन वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। देखिए इसमें क्या है, ये रिलेशन दिया है, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू ए, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये एक फंक्शन है। तो ये तो फंक्शन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। आपने एक आर्टिफिशियल फंक्शन बनाया कैपिटल एफ, वो गिवन फंक्शन एफ और प्लस लैम्डा टाइम्स फाइव। अब आप क्या करोगे, उस डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड जीरो निकालोगे, तो इसको सॉल्व जब करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की सिंगल वैल्यूज मिलेंगी, ये वाली एक्स वाई जेड। तो यानी इस फंक्शन में हम रख देंगे कि हाँ हम अज्यूम करेंगे कि ये स्टेशनरी पॉइंट है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो एक्स वाई जेड को हमने कि जो भी वैल्यू आई वो उस फंक्शन में रख दी, तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ऐसे ये है, ये फंक्शन है जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये हमारा रिलेशन है। तो हमारा आर्टिफिशियल फंक्शन कैपिटल एफ क्या बनेगा, गिवन फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स फाइव। फिर डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालिए, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालिए, डेल एफ ओवर डेल जेड निकालिए, तीनों को जीरो रखिए, तो उससे हमें ये रिलेशन मिला, लैम्डा की वैल्यू मिली। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, ये तीनों लैम्डा की वैल्यू है, तो हमें क्या मिला कि तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। अब तीनों को सॉल्व कर, अब तीनों सिमिलरली, अब ये हमें एक रिलेशन मिला, मीन्स एक कंडीशन मिली, और हमें एक कंडीशन दिया है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए क्यूब है। तो आप क्या करिए, यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस जेड वाई की वैल्यू, तो इस तरह से किसी एक वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप z को y को x के टर्म्स में रख दीजिए, या x और y को z के टर्म्स में रख दीजिए, किसी भी। तो इस रिलेशन के थ्रू इस रिलेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू प्लस माइनस वाई, ऐसी y को जब सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस जेड।
तो तीनों वेरिएबल में किसी दो वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट वेरिएबल रख दीजिए, तो तीनों x के टर्म्स में आ जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो हमें कई सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो उनको सब सॉल्व करोगे तो आपको ट्रिपल ए माइनस ए ऐसे चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे पॉइंट्स के। सो एट ईच ऑफ दीज पॉइंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सारे, क्योंकि हमें ये पता है ये सारे स्टेशनरी पॉइंट है, मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं पता, तो हम तीनों पॉइंट जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फंक्शन में, तो तीनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, चारों पॉइंट सेम वैल्यू दे रहे हैं 3a², यानी यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मिनिमम पूछा है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस लगा के प्रूफ भी कर दिया है कि ये मिनिमम होगी। अर्थमेटिक मीन ऑफ x² y² z² क्या होगा, ये होगा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा तीनों का, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन तीन नंबर्स का, वो क्या है a² के इक्वल आ रहा है, यानी और ऑल यू हैव दिस प्रॉपर्टी दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो उस रिलेशन से ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, यानी दिस x² + y² + z² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3a²। सो हमेशा इससे ज्यादा है, दैट मींस दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। ऐसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें दो रिलेशन है, phi1 phi2, तो उसमें सिंपली हमें करना क्या है, फंक्शन जो होगा क्या, पहले गिवन फंक्शन f, फिर लैम्डा टाइम्स फर्स्ट फंक्शन, लैम्डा 2 टाइम्स सेकंड फंक्शन। इसमें भी हमें del f over del x, del f over del y, del f over del z निकालना है। तीनों को सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू निकालनी है एनी हाउ, वो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, show that the rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is a cube. So rectangular solid हमें क्वेश्चन क्या दिया है, द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। सो रेक्टेंगुलर सॉलिड के सपोज डायमेंशन है एक्स वाई जेड, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया एक्स वाई जेड, इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट इट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर एंड दिस रेक्टेंगुलर सॉलिड इज अ क्यूब। तो ये रेक्टेंगुलर सॉलिड कब क्यूब होगा, जब तीनों डायमेंशंस इक्वल होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो मींस क्वेश्चन क्या है कि द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मतलब उसे हम किसी स्फीयर में रखेंगे रेक्टेंगुलर सॉलिड को, तो वो जो डायमेंशंस होंगी ऑलवेज इक्वल होंगी, एक्स वाई इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, यानी वो क्या होगा, एक क्यूब होगा। तो हमें रिलेशन क्या दिया है स्फीयर का, स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है 3D में, x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। सो दिस इज द फाई फंक्शन, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो लैग्रेंज मेथड क्या करेगा, कैपिटल F इज इक्वल टू द फंक्शन मींस एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा टाइम्स फाई। अब हम del f over del x, del f over del y, del f over del z निकालेंगे, तीनों को सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू मिली हमें तीनों से, तीनों लैम्डा की वैल्यू रिप्रेजेंट करा, इसलिए तीनों इक्वल होंगे। अब फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, इनको सॉल्व किया तो x² इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू z² मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और ये पॉसिबल कब है, बिकॉज एक्स वाई जेड आर द लेंथ विड्थ एंड द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, सो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इसलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो हमने वो प्रूफ कर दिया कि जो रेक्टेंगुलर सॉलिड था जिसकी डायमेंशन एक्स वाई जेड थी, वो तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल है दैट मींस दिस मस्ट बी अ क्यूब। सो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। So in the next lecture we will start our next unit.